شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ذہنی آزمائش سیزن 12 مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ لے کر حاضر ہیں ہم ہوں گے، سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا یہ پروگرام ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ مقابلہ ہوگا دو اہم ٹیموں کے درمیان، اور وہ ہے لودھراں اور سکھر۔ آئیے ٹیمز کو بلاتے ہیں، پھر تلاوت سنیں گے اور باقاعدہ فارملی اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ٹیمیں منچ پر تشریف لے آئیں۔ العلم نور، العلم نور، العلم جیت انعام ہے، شکریہ شکریہ۔ جی قاری صاحب تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کا نام کیا حضور؟ محمد کاشان اتاری۔ محمد کاشان اتاری، ماشاءاللہ۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا اور کون سے جامعہ المدینہ میں مدرسہ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ آپ ذرا یہ بھی بتائیں۔ ویسے بیسکلی تعلق جو ہے حیدرآباد سے ہے، زمزم نگر، ماشاءاللہ، لیکن یہاں طالب علم ہوں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، درجہ خامسہ 6 سالہ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق قرآن میں اور برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کو تحفہ بھی پیش کیا جا رہا ہے سید صاحب، ماشاءاللہ عطر مدینہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور کیا پیش کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ سرمہ مدینہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سرما بھی لگائیں جی اور آنکھوں کو اور روشن کریں۔ اس میں سرما پیش کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرما لگانے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ پلکوں کو اگاتا ہے اور نگاہوں کو تیز کرتا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل جو پروگرام ہوا کس طرح سے ہوا؟ دلچسپ پروگرام رہا ماشاءاللہ، کوئٹہ اور ملتان کی ٹیموں کے مابین۔ آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ One of the most favorite program on media industry، آج اس کی 10th ایپیسوڈ ہے، یعنی آج ہمیں تلاش ہے 10ویں ٹیم کی۔ العلم علم نور ہے، العلم نور۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا بری منہ سے بچاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب،
नजारा रूह जाना का बहाना करके हैरत का, नजारा रूए जाना का बहाना करके हैरत का जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बताइए इस सिग्नल से क्या मुराद है? तेज आंधियों वाला इलाका। तेज आंधी वाला इलाका, जवाब दुरुस्त दे दिया है। समझाइए बगैर इशारों से। नहर की सदाएं। नहर की सदाएं, कमाल है। हालांकि ये इशारा आसान नहीं था मगर बड़ा टेक्निकल इशारा किया इन्होंने। मुल्तान वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है कोयटा वालों का। आइए कोयटा के इस्लाम भाई तशरीफ लाएं। कलाम जी जनाब, बताइए ये शेर किस बुजुर्ग का है? रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अमीर अहले सुन्नत। नहीं जनाब, ये मौलाना हसन रजा खान साहब जो शहनशाह सुखन हैं, सैयदी आला हजरत के ब्रदर हैं, ये उनका शेर है। गलती हो गई है। बहरहाल बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। मुल्तान वालों को मुबारक हो, ये आगे बढ़ गए हैं। कोयटा वाले फिर तैयारी करके आए। आखिरी मौका फिर आपको मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। अब मदनी चैनल के नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की टीमें लोधरा और सक्खर की हैं। इनसे तारुफ भी लेंगे इनका, लेकिन पहले कल जो सवाल हुआ था वो सवाल क्या था और कौन ऐसे इस्लामी भाई हैं मदनी चैनल के नाजरीन हैं जिन्हें इनाम मिलेगा, उनका ऐलान इंशाअल्लाह हमारे मंच से यहाँ पर किया जाएगा। जी, गुज़िश्ता सिलसिले में हम रोज़ाना एक सवाल करते हैं अपने नाजरीन से। तो कल जो सिलसिले में सवाल किया गया था वो था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल किस तारीख को हुआ? तो दुरुस्त जवाब है 14 मुहर्रमुल हराम। मलफूज़ाती अमीर अहले सुन्नत में ये जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के मुंतखब नाम ये है: नासर मेमन कराची से, बिनते आसिफ सरगोदा, बिनते मंजूर अत्तारी इस्लामाबाद, बिनते शौकत न्याजी मुल्तान शरीफ, रहीम बख्श अत्तारी मीरपुर साकरो, बिनते मुनीर अत्तारिया फैसलाबाद, बिनते सरफराज अत्तारिया, बिनते रफ़ीक अत्तारिया सियालकोट, मोहम्मद उज़ैर बिन हाफिज़ गुलाम सरवर मूसा खेलमिया वाली, बिनते अब्दुल मजीद कराची, बिनते हाफिज़ मोहम्मद सादिक, उम्मे हानी कश्मीर, बिनते रहमत अली लाहौर, बिनते अल्लाह बख्श अत्तारिया डेरा अल्लाह यार, बिनते लियाकत अली हाशमी टिब्बा सुल्तानपुर, अमजद भट्ट टेक्सला, बिनते अहमद अत्तारिया रहीम यार खान, मोहम्मद अहमद फरीद खानपुर, बिनते मुबशर अत्तारिया लाहौर। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी करते हैं। आज जिनका नाम निकला है बिनते रहमत अली लाहौर, इनका आज जो है वो कुरानदाजी में नाम निकला है। अपने महरम के जरिए राब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पहुंचाया जाए। SMS के जरिए इसका जवाब देना है। सवाल ये है, या जलीलो 10 बार पढ़कर अपने मालो असबाब पर दम करने की क्या फजाइल हैं? इसी तरीके से क्विज एप्लीकेशन वालों के लिए हम सवाल कर रहे हैं। क्विज एप्लीकेशन वालों के लिए सवाल ये है, ये बताइए इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? ये क्विज एप्लीकेशन वाले क्विज एप्लीकेशन के जरिए जवाब देंगे। सैयद साहब, ये जो सवाल आपने किया इसका जवाब ढूंढने के लिए कौन सी किताब होगी, क्या जरिया होगा? मलफूज़ात अमीर अहले सुन्नत है जो SMS के जरिए हमने सवाल किया, या जलीलो वाला, तो इसका जवाब मिलेगा मलफूज़ात अमीर अहले सुन्नत में। देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, जो दावत इस्लामी ज़हनी आजमाइश की जो क्विज एप्लीकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही है और ये भी नेकी की दावत का एक जरिया है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, दूसरों को तरगीब दें। इससे पहले कि टीमों का तारुफ लें, हम देखते हैं कि आज का हमारा ज़हनी आजमाइश सीजन 12 का 11th एपिसोड वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ये तो थी इब्तिदा। जी हाँ, इल्म नूर है, इश्क के बोल, फतावा अहले सुन्नत, बेहतरीन दोस्त, जान है तो जहान है, फर्क तलाश करें, नसीब अपना अपना। ये हैं आज के सेगमेंट्स। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन सेगमेंट्स में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। बताइए जी, सबसे पहले तारुफ देंगे हमारे सक्खर वाले इस्लामी भाई। मेरा नाम अब्दुल हफीज है, मेरा ताल्लुक गंबड़ से है। मैं जामिअतुल मदीना सक्खर में दर्जा राबिया में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा। सईद अहमद अत्तारी बिन मकबूल अहमद अत्तारी, जामिअतुल मदीना सक्खर में पढ़ता हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक कंबर से है। सही। मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल हमीद राजपूत, मेरा ताल्लुक खैरपुर से है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सक्खर के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। खैरपुर मीरत से ताल्लुक रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सक्खर की टीम किस तरीके से
यहाँ पर पहुंची, किन मराहिल से गुजरते हुए सुभान भाई नाजरीन को वो पैकेज दिखाते हैं। आइए देखिए जी। हमारी मदनी चैनल की टीम मुख्तलिफ शहरों का सफर करती करती आज पहुंची है सक्खर में। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसके कत्ल की खबर सुनकर सजदाए शुक्र अदा किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की कत्ल की खबर सुनकर सजदा शुक्र अदा फरमाया। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तारुफ होगा लोधरा वालों का जी। मेरा नाम सैयद दानिश शाह बिन अब्दुल रज़ाक शाह है। मैं जामिअतुल मदीना चक हिमता लोधरा में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, चक हिमता, मरहबा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद बिन इशफाक हुसैन शाह बुखारी है और मैं जामिअतुल मदीना खानका शरीफ में दर्जा खामिसा में पढ़ता हूँ। मरहबा। मोहम्मद उस्मान अत्तारी बिन मोहम्मद फियाज कादरी फ्रॉम मुल्तान दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। माशाअल्लाह, आज हमारे सक्खर और लोधरा की टीम में 6 के 6 इस्लामी भाई गालिबन जामिअतुल मदीना के हैं। माशाअल्लाह, आज ये टोटल जामिअतुल मदीना की टीम्स हैं और लोधरा की टीम की सिलेक्शन माशाअल्लाह, सक्खर की टीम की सिलेक्शन एज पर मेरिट हुई। आइए देखते हैं लोधरा की टीम आज यहाँ ज़हनी आजमाइश सीजन 12 के मंच तक पहुंची तो कैसे पहुंची। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। नूर अल इल्मु नूर अल इल्मु नूर। आज बारी है लोधरा की। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और बहुत दूर दूर से इस्लामी भी यहाँ पर आज तशरीफ लाए हैं। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। नूर। कसम की कितनी किस्में? कसम की 3 किस्में, कसमें लग़्व, मुनक्किदा और गमूस। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हम तो हैं। मरने की मदीने में दुआ करते हैं। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा। माशा अल्लाह। तो ये था सफर लोधना का। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम और फर्स्ट सेगमेंट विल बी इल्म नूर है। पहला सेगमेंट हमारा होगा इल्म नूर है। आइए प्रोग्राम का फॉर्मल आगाज करते हैं। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। लोधरा की टीम है, सक्खर की टीम है, मुकाबला शुरू होने लगा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत संभल के और कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिएगा। अपना मुंह जो है माइक के करीब रखेंगे, अपना पोस्टर भी एडजस्ट रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह भला करेगा। लेट्स स्टार्ट विद सक्खर। सक्खर के साथ हम अपने मुकाबले को शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, शैतान से हिफाजत का क्या वजीफा है? शैतान से हिफाजत का क्या वजीफा है? आपको 25 सेकंड दिए जाते हैं, इसमें आपने जवाब देना होता है।
حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص یہ شام کے وقت 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ صبح کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ جی حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جو شخص صبح میں 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یعنی میں شیطان مردود سے سننے جاننے والے کی پناہ مانگتا ہوں، وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور جو شام میں یہ دعا پڑھے وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ سکھر والوں نے پہلا سوال جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں لودھراں کی طرف۔ جی پہلا سوال، حدیث پاک میں کن 3 قسم کے لوگوں کو جنتی فرمایا گیا؟ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا۔ 18 سیکنڈ ہے اور آپ یہ بتائیں گے حدیث پاک میں کن 3 قسم کے لوگوں کو جنتی فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو اور کامل الیقین ہو، اور نمبر 2 وہ شخص جو ہر مسلمان پر مہربانی کرے خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اور نمبر 3 وہ پاک دامن فقیر جو سوال کرنے سے بچے۔ جی اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ حاکم جو عدل کرنے والا، صدقہ کرنے والا اور کامل الیقین ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو ہر مسلمان پر رحم دل اور نرم دل ہو، خواہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور وہ پاک دامن فقیر جو سوال کرنے سے بچتا ہو۔ آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ Let's move towards the second question. سکھر is our team. جی سکھر والے تیار ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے مومن میں کون سی 3 خصلتیں نہیں ہوتی ہیں؟ سوال کا جواب بھی سنیں اور اپنا انالیسس بھی کرتے جائیں، اور اگر کوئی ایسی خصلت جو مومن میں نہیں ہونی چاہیے وہ پائی جا رہی ہے تو اس کو دور بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالتعانی ولا باللعانی ولا بالفاحش المزیء، یعنی مومن تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بد کلام، تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا بد کلام نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سلمان بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، انالیسس کیجئے کہیں یہ 3 باتیں ہم میں تو نہیں ہیں۔ بہرحال سکھر کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا لودھراں سے۔ لودھراں والے آپ یہ بتائیں کن 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کرنا چاہیے؟ 9 کی 9 آپ چیزیں مجھے بتائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سبحان اللہ کہو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نیکی طلب کرو اور گناہ سے بچو اور نیکی کا حکم دو، گناہ سے روکو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ان 9 چیزوں کے علاوہ تم کلام کم کیا کرو۔ 9 چیزوں کے علاوہ کلام کم کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، بھلائی طلب کرنا، برائی سے پناہ مانگنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا۔ لودھراں کا یہ جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سکھر والے ہوں گے، سوال نمبر 3 ہوگا۔ ابھی تک دونوں نے دونوں جوابات صحیح دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کے تعمیری کام کے وقت کون سے اشعار پڑھ رہے تھے؟ صدقے یا رسول اللہ، واہ واہ۔ مقصد نہیں ہے تیرا، آگے بڑھتے رہو۔ جی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کے تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ آواز ملا کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ افلح من یعالج مسجدا ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، یعنی وہ کامیاب ہے جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے نہیں گزارتا۔ رات کو سوتے ہوئے نہیں گزارتا۔ مدری چینل کے ناظرین ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں سوچئے کیسا پیارا منظر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کا جوش و ولولہ بیدار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ The next question جی، اور ہماری ٹیم ہے لودھراں۔ آپ یہ بتائیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے
حضرت سیدنا نصر بن کثیر علیہ رحمت اللہ القدیر کو مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیا دعا سکھائی؟ واہ. اللہ ہم سب کو بھی بادب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ذہ نصیب امام جعفر صادق کی سکھائی ہوئی دعا بھی یاد ہو تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. حضرت سیدنا نصر بن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی، میرا بیت اللہ میں حاضری کا ارادہ ہے، آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جن سے میں وہاں جا کے دعا مانگوں. تو آپ نے فرمایا جب تم مکہ مکرمہ پہنچو تو دیوار پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا، یا صاحب قل فوت یا سام یا صوم و یقاسل اظام لحمت بعد الموت، یعنی اے ہر ناقص و محروم سے پاک، اے التجاؤں کو سننے والے سے پاک، اور اے موت کے، اور ایک موت کے بعد گوشت پر ہڈیوں پر گوشت رہنے والے، پھر جو جاؤ دعا مانگو. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بھائی نے لودھنا کی ٹیم کی طرف سے عربی متن بالکل ٹھیک سنایا تھا، اور عربی متن میں ہی دعا ہے، بہرحال ہم دہرا لیتے ہیں. فرمایا ہے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے التجاؤں کو سننے والے، اور اے موت کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والے. اور یہ دعا مانگنے کے بعد پھر جو چاہو دعا مانگو. اللہ کرے ہمیں بھی مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو، یہ دعا ہمیں بھی یاد ہو، اور وہاں ذکر و اذکار کا سلسلہ چلتا رہے. لودھنا نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیجئے، آپ کو یہ جواب آتا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو کنسیو دس، انٹرنلائز کریں اس بات کو. آپ آئیے، ہماری سکھر کی ٹیم ہے. فرمایا آپ سوال نمبر 4 ہوگا غالباً آپ سے. آپ یہ بتائیں گے امام اعظم سے جب کسی نے عمر دریافت کی، ان کی ایج پوچھی، تو آپ نے کیا عمر بتائی؟ دور ہے منزل راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی مل گیا رہنما. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے عمر دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو 60 برس سے کچھ اوپر گزر گئی ہے، لیکن حقیقت میں میری عمر 2 سال ہے، اور وہ 2 سال وہ ہیں جن میں نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی. یہی میری حقیقی زندگی ہے، باقی زندگی. واہ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت جواب ہے کہ وہ صحبت جو اللہ کے نیک بندوں کے درمیان گزری، ان سے فیضیاب ہوتے گزری. امام اعظم یقیناً عاجزی فرماتے ہوئے اسی کو اپنی عمر کا حصہ بتا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 2 سال وہ ہیں جن میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار کی. بس وہی 2 سال میری حقیقی حیات کے سال ہیں. سکھر نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے جی، اب آپ کا سوال ہوگا ہماری لودھنا کی ٹیم کا. فرمائیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا 3 نصیحتیں فرمائیں؟ بزرگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ نصیحت فرماتے ہیں، اور خوش نصیبوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بے شک ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، نصیحت ملے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سفیان اگر تمہیں کوئی پسندیدہ بات پہنچے تو جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کا ذکر کرو، اور اگر ناپسند بات پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اور اگر تمہیں رزق میں تخیری محسوس ہو تو کثرت سے استغفار کرا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ارشاد فرمائے جنہوں نے. نصیحتیں کیا فرمائی امام جعفر صادق نے؟ نصیحتیں یہ فرمائی، اے سفیان اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز حاصل ہو تو جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اور اگر رزق میں تاخیر محسوس ہو تو کثرت سے استغفار کرو. جواب درست دے دیا ہے. اتنی پیاری نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کو ہمیں بھی ماننا چاہیے. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، کچھ لوگوں کو مسٹر نو اٹ آل کہا جاتا ہے. ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سب پتا ہے، اور وہ کلوز ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عام طور پہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ تو ایسا پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. اگر اپنے آپ کو اوپن رکھیں گے تو یہ چیزیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے. جی سکھر والوں سے اب سوال ہے، آپ یہ بتائیے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ کس تاریخ، کس دن، کس جگہ اور کس وقت پیش آیا؟ واہ ماشاءاللہ، یہ کتنا بڑا ایک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. اور دیکھیے یہ انفارمیشن آج
इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचेगी। किबले की तब्दीली का वाकया, तारीख, दिन, जगह, वक्त अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी सकर की टीम हमें बताएंगे। जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के एक साल बाद, हिजरत के एक साल साढ़े पाँच माह बाद 15 रजबुल मुरज्जब को मस्जिद बनी सलामा में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे और बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में 2 रकातें पढ़ चुके थे। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम किबले की तब्दीली का हुक्म लेकर नाजिल हुए। माशाअल्लाह, क्या ही शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की कि नमाज की हालत में ये किबले की तब्दीली का हुक्म आया। और ये कब आया? जिस तरह इन्होंने बताया कि ये 1 साल 5.5 महीने के बाद 15 रजब को पीर के दिन मस्जिद बनी सलमा में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकतें बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो चुकी थी। उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम किबले की तब्दीली का हुक्म लेकर नाजिल हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप दोनों टीमों से गुजारिश है, फुल जोश और जज्बे के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करके बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों टीमें कॉम्पिटेंट हैं और एक अच्छा आप कंपटीशन करेंगे। सही है, कंसल्टेशन आपस में करते रहें, मोटिवेटेड रहें। आप जानते हैं कि आज 11वीं टीम हमने ये ज़हनी आजमाइश से सिलेक्ट करनी है। प्री क्वार्टर फाइनल भी आगे है। पूरे पाकिस्तान के शहरों के ज़हीन तरीन तलबा हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे इंशाल्लाह। जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फरमाइए हमारी लोधरा की टीम में मोमिन और जाहिल दोनों से किस तरह सलूक करना चाहिए? कितना ही जबरदस्त ये जवाब होगा हमें पता चल जाएगा। मोमिन और जाहिल से किस तरह सलूक करना चाहिए? मिलते रहते हैं ऐसे लोग हमें। ऐसी बात। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोगों की 2 किस्में हैं, मोमिन और जाहिल। मोमिन को अजियत और तकलीफ ना दो और जाहिल से जहालत से पेश ना आओ। मोमिन को अजियत और तकलीफ ना दो और जाहिल से जहालत से पेश ना आओ। लोधरा ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म नूर है सेगमेंट खत्म हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन जबरदस्त तैयारी के साथ सक्खर और लोधरा आज ज़हनी आजमाइश के मंच पर मौजूद हैं। पहले सेगमेंट में दोनों ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन अंदाज से 5 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट है इश्क के बोल। इश्क के बोल भी होगा सुभान भाई। जी जनाब। और स्कोर बोर्ड भी होगा और नाजरीन की बारी भी आएगी इंशाल्लाह। जी आतिफ भाई, सवाल ये है कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि वो अपने हाथ में लोहे को लेते थे तो वो मोम की तरह नरम हो जाता था? हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते थे नरम हो जाता था। जी हाँ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की 2021 की मदीना डायरी जो है अब वो इन्हें पेश की जाएगी। और इस डायरी के फवाइद क्या है? इसके अंदर तो एक 2021 का जो है कैलेंडर मौजूद है, उसके साथ साथ हर महीने में किन किन बुजुर्गान दीन के आरास हैं उसकी तफसील भी इस डायरी के अंदर मौजूद है। और मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहे तो 330 रुपए में मकतबतुल मदीना से ये तलब की जा सकती है। माशाअल्लाह, सही, मरहबा। एक सवाल नीचे से भी हम लेंगे, जहाँ पर नीचे हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। जी जरूर। से भी शहबाज भाई। लब्बैक। सवाल ये है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम बता दें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम। साथ साथ मदनी फीस भी मिलती जाए तो मदीना मदीना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। जवाब दुरुस्त दिया माशाअल्लाह। इन इस्लाम को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल किताब अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान जबरदस्त किताब तोहफे में पेश की जा रही है। सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह। जी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इश्क के बोल। चलिए कुछ सुना दे इश्क के बोलो मैं रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलो मैं रज़ा, मुश्ताक तब अलज़्ज़त सोज़े जिगर की है। जी सखर वाले, आपको मैं पहला मिसरा इसका बोलूंगा, आपने इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात,
आसान शेर है, बता दीजिए। तलवों का धोवन है, आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोधरा की टीम की बारी है। बताइए, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आपको पढ़ना है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और रसूलों से आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जी, सखर की बारी है। मैं फिर पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने शेर मुकम्मल करना है। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जी। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आपको पढ़ना होगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चल जाता इशारों पर खिलौना नूर का। जी, तीसरा शेर अब सखर वालों से पूछा जाएगा। पहला मिसरा मैं बोलूंगा, आपने शेर मुकम्मल करना है। जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो। जी, जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो। जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लोधरा वाले बताएंगे। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आपको पढ़ना होगा। उम्मत के हाल से हैं आगाह हर घड़ी आप। ख्वाबों में आ रहे हैं, बिगड़ी बना रहे हैं। ख्वाबों में आ रहे हैं, बिगड़ी बना रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। Fourth one from सखर। कौन कहता है दिले बेमुद्दआ है खूब चीज। मैं तो कोड़ी को न लूं उनकी तमन्ना छोड़। मैं तो कोड़ी को न लूं उनकी तमन्ना छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन कहता है दिले बेमुद्दआ है खूब चीज। मैं तो कोड़ी को न लूं उनकी तमन्ना छोड़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोधरा वालों की बारी है। जी, बताइएगा। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मर ही जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। जी, लास्ट वन फ्रॉम सखर। अभी तक मुकाबला बिल्कुल टाई जा रहा है। बहुत अच्छी तैयारी लग रही है। तालिब का पता मतलूब को है, मतलूब है तालिब से वाकिफ। दूसरा मिसरा आप बताएंगे। तालिब का पता मतलूब को है, मतलूब है तालिब से वाकिफ। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिए, पर्दा भी रहा सुबह। वाह, पर्दे में बुलाकर मिल भी लिए, पर्दा भी रहा। सुभान अल्लाह। और जवाब दुरुस्त दे दिया है। तालिब का पता मतलूब को है,
مطلوب ہے طالب سے واقف، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی لودھرا والوں سے میں پہلا مصرع پوچھ رہا ہوں، دوسرا آپ کو سنانا ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں۔ تو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عشق کے بول سیگمنٹ مکمل ہوا، انشاءاللہ باری ناظرین کی بھی آئے گی، اور منچ پر ہیں صوبان اور آڈینس میں ہیں ابن صوبان، سلمان صوبان، ان دونوں کے حروف بھی برابر ہیں۔ ابن صوبان سے کیا سوال ہونا چاہیے؟ سوال بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ہی کریں، سوال آپ کریں۔ یہاں پر بھی یوں ہی ہونا چاہیے نا، وہاں پر صوبان پہ سوال کر رہے ہیں، یہاں پر یہ سوال کر لیں۔ اچھا جی، یہ ان سے ہم سوال کرتے ہیں، ان سے کریں۔ چلیے جی، یہ بتائیے آسان سا سوال سبحان بھائی، بہرحال عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے جواب آتا ہو تو پھر آسان ہے، نہ آتا ہو تو آسان ہے مشکل ہے۔ شعر سننا ہے نا ان سے بھی؟ جی نہیں، ان سے سوال کریں گے، ان سے چلیں شعر سن لیتے ہیں، شعر سن لیتے ہیں۔ شعر سنائیے جی، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا اس کا کپلیٹ جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، پے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام شریف کی تحفہ دیا جا رہا ہے اور مدینہ شریف کی کلونجی۔ واہ سبحان واہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی نیچے والوں سے بھی باپو شعر پوچھیں گے؟ جی پوچھیے، آپ پوچھیے۔ جی شہباز بھائی، اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام کا شعر سنا دے جس میں اعلیٰ حضرت نے پل کا تذکرہ کیا ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جواب درست ہے۔ انہیں انشاءاللہ عزوجل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں۔ جی شوق میں گھر سے میں ہوں چلا۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول، 2 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں، دونوں ٹیمز 20-20 پر موجود ہے۔ دیکھیں آگے مقابلہ کیسے بڑھتا ہے۔ جی سلمان بھائی اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے سلمان جی، بھائی کال لے لیں، کال دے دیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش، ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا، اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی اور صوبان بھائی کا سلسلہ کرنے کا انداز تو بہت پیارا ہے، لیکن اب حبیب بھائی کی کمی کافی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے، اتنا بڑا پروگرام کرنا اور سارے سنیریو کو اور اس کو لے کر کے چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح ٹیمز میں پریشر ہوتا ہے، ویسی صوبان بھائی کنڈکٹ کرنے والے پر بھی ایک پریشر بہرحال اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ وہ ہے نا جی، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کہ یوں۔ سبحان اللہ۔ جی اگلی کال، ایک اور کال دے دیں۔ بہت پیارا جواب ہے۔ میرا نام مشہور ہے۔ آپ جو پچھلی دفعہ سیگمنٹ لسانی معلومات میں آئے تھے تو اس بار بھی لائیے، اس سیگمنٹ میں ہمیں قرآن کی معلومات ملتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ آپ کا یہ سجیشن نوٹ کر لیا گیا مجلس کی طرف سے، انشاءاللہ مجلس جو فیصلہ کرے گی پھر اس کو ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، فتاوی اہل سنت۔ العلم نور، العلم نور۔ ماشاءاللہ دونوں جو ہے وہ ٹیموں سے سوال کیے جائیں گے، جو ہے دو سوال کیے جائیں گے اور ان کے نمبر بھی آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ چلے جی،
پہلا سوال ہے سکھر کی ٹیم سے، بتائیے پلاٹ وغیرہ کی رجسٹری کرنے کے لیے مٹھائی کے نام پر رقم لینا کیسا ہے؟ اگر رجسٹری کروانے والا رقم نہ دے تو رجسٹری کرنے والا ٹال مٹول کرتا ہے، بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ علم نور ہے، علم نور ہے، مٹھائی کے نام پر، چائے کے نام پر، پانی کے نام پر. جی بہت بڑی انفارمیشن ہوگی. جی رجسٹری کروانے والا مٹھائی کے نام پر جو رقم دے رہا ہے یہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کا کام بن جائے، اور اپنا کام بنانے کے لیے جو رقم دی جائے یا جو چیز دی جائے اسے وہ رشوت ہوتی ہے. اس صورت میں جو لینے والا ہے وہ ہر صورت میں گناہ گار ہوگا، اور دینے والا اگر اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کے تعلقات بڑھ جائیں یا پھر اس کا کام جلدی میں ہو جائے، اور اس میں دو صورتیں ہیں. اگر وہ کام پیسے دیے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو پھر دینے والا گناہ گار نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو دینے والا گناہ گار ہے. اگر دینے والا بغیر پیسہ دیے وہ کام نہیں ہو سکتا تو دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا مجبوری کی وجہ سے. لیکن لینے والا دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ. جی بتائیں گے جواب لودھنا والے. سوال ہے آپ سے، نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے فوراً بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے یا سیدھی طرف سلام پھیرنے پر سیدھا اور الٹی طرف سلام پھیرنے پر الٹا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے؟ بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ خود کو پوچھا. نماز جنازہ میں جہاں قیام ہوتا ہے یا نماز جنازہ میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس وقت ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں. نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو جیسے ہی سلام پھیریں دونوں، جیسے ہی وہ چوتھی تکبیر کہیں اس وقت ہاتھ چھوڑ دیں پھر سلام پھیریں. میں ذرا پریکٹیکل کر کے صبح میں بتا دیتا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں، جیسے اب 3 تکبیریں ہو چکی ہیں، چوتھی تکبیر ہو گئی، تو طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر پر ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے. یہ درست طریقہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں بعض اوقات یوں ہاتھ باندھے ہوئے سیدھی طرف سلام پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ یوں کر رہے ہیں، الٹی طرف سلام پھیریں گے تو الٹا ہاتھ یوں کر رہے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. لودھرا والوں کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے سکھر والوں سے. جناب سکھر والے بتائیے سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ سفر میں روزہ رکھنے سے اگر اس کے ساتھی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اذیت پہنچتی ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اگر مسافری صبح شادی کے بعد ہوا ہے تو روزہ اس پر لازم ہے، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. جی لودھنا کی ٹیم سے سوال ہے، بتائیے کیا طواف اور سعی کے دوران تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ طواف اور سعی کے درمیان بلا عذر فاصلہ کرنا مکروہ ہے. ہاں عذر کی وجہ سے فاصلہ کر سکتے ہیں. وہ عذر نماز کی وجہ سے یا نماز جنازہ کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے. اگر کوئی شدید تھک جائے تو وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اگر وہ تھوڑی سی دیر بیٹھتا ہے تو وہ جہاں سے اس نے طواف یا سعی چھوڑی تھی وہیں سے ابتدا کرے گا. اگر وہ اسے زیادہ فاصلہ ہو جاتی ہے زیادہ وہ آرام کر لیتا ہے تو پھر از سر نو وہ شروع سے کرے گا. زیادہ لمبا وقفہ ہو گیا تو دوبارہ شروع کرنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ. جی مستحب ہی، میں نے بھی مستحب کہا ہے، مستحب ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. فتاوی اہل سنت جس کی درپیش ضلع مروت بات کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا سلسلہ مقبول عام سلسلہ. ذہنی آزمائش ہم کو بہت پسند ہے، ہمارے گھر والے سبھی دیکھتے ہیں اور ان کی سب سیگمنٹ ہمیں پسند ہے. لیکن جو فتاوی اہل سنت ہے ان میں بڑے بڑے مسائل ہم کو ملتے ہیں اور ہم جو وہ ہے مسجد چینل کی پوری ٹیم اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو محبت و بڑا سلام پیش کرتے ہیں. مرحبا، ماشاءاللہ. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپریسیشن کے لیے، دعاؤں کے لیے بہت شکریہ. آباد رہیں. ایک اور کال.
मेरा नाम मोम कुर्बान अख्तर, मैं जिला रहीम जरखान से बोल रहा हूँ। आपका सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। आपका ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा चलता है। हम सारे बहन भाई देख रहे हैं, हमारे लिए दुआ भी फरमा दे, हम नेक बन जाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। ज़हनी आज़माइश देखते रहिए, इसकी दावत दीगर तक पहुँचाते रहिए। मरहबा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, 3 सेगमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों टीम्स बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ आज मंच पर मौजूद हैं। 24 नंबर्स हैं, लेकिन अगला सेगमेंट है बेहतरीन दोस्त, और हम यही देखते हैं कि ये सेगमेंट कुछ ना कुछ डिफरेंस डाल देता है। बड़े गौर से वो नंबर भी सिलेक्ट करते हैं। और सलमान भैया, मैं आपसे ये शेयर करूं कि ये सारा दिन चौके कराची में हूं और फैज़ार मदीना में आना जाना रहता है। ये बच्चे हमारे इस्लामी में जिस तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, जो इनकी नजरों में चमक होती है, वो नजर आता है कि रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए बेहतरीन दोस्त के अंदर चौके नंबर सिलेक्ट करने होते हैं, क्या ऑप्शन आती है, क्या रिजल्ट निकलता है, ये सेगमेंट डिफरेंस डाल देता है। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट बेहतरीन दोस्त। जी, बेहतरीन दोस्त, ये सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं और सखर की टीम को इंशाल्लाह सबसे पहले स्क्रीन पर ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। पहले ही ऑप्शन पर जवाब देंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन बढ़ते जाएंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। जी, सखर नंबर 2। नंबर 2 मौजू हदीस। नंबर 4। नंबर 4 मौजू हदीस है, जिल्दें 1 हैं। 1। नंबर 3। नंबर 3 मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला। हिंट तो मजबूत है, हिंट मजबूत है। देखें क्या करते हैं, जंप अप करते हैं कि अगला नंबर खुलवाते हैं। जी, रिस्क लेंगे या अगला ऑप्शन लेंगे? वक्त पूरा होने के बाद अगला नंबर जो है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। ऑप्शन लेंगे। जी बताइए। नंबर 1। नंबर 1 रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है सखर वाले। जबान उर्दू है। अनवारुल हदीस। अनवारुल हदीस जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त किताब है, हदीस पाक से ताल्लुक रखती है, शरह हदीस भी है, मुताले से ताल्लुक रखती है। जरूर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा इल्म हदीस हासिल होगा। लोधरा वालों को ऑप्शन दिखाइए। नंबर 4। नंबर 4 जबान है उर्दू। नंबर 1। नंबर 1 बताइए जी, नंबर 1 के पीछे क्या है? सफ़हात, पेजेस 131। जी, एक बड़ा इशारा आपके सामने है। अगर आप जवाब दे देते हैं, आप आगे निकल जाएंगे। क्या रिस्क लेंगे या अगला नंबर खुलवाएंगे? अल हक़्क़ुल मुबीन। अल हक़्क़ुल मुबीन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त। और हमारी लोधरा की टीम आगे निकलते हुए। अकायद से ताल्लुक है इस किताब का, मौजू इसका अकायद है, और इसको भी आप मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कीजिए और इसका मुताला कीजिए। जी, सखर की टीम को ऑप्शन दिखाएंगे। नंबर 5। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 के पीछे जबान उर्दू। नंबर 4। जी, नंबर 4 मुसन्निफ अमीर अहले सुन्नत मुद्दा जिल्लुहुल आली। नंबर 2। जी, नंबर 2 मौजू तसव्वुफ। नंबर 3। नंबर 3 सफ़ात हैं 504।
गीबत की तबाहकारियाँ। गीबत की तबाहकारियां, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गीबत की तबाहकारियां, ये भी बड़ी अहम किताब है। यूं समझ लीजिए सोबान भाई, गीबत की मालूमात पर इंसाइक्लोपीडिया है। पढ़ेंगे, मिसालें भी बयान की गई हैं कि ये मिसाल है जिसमें गीबत की बू है, तो बंदा उससे अपने आप को बचाए। चलिए जी, लोधरा वालों को ऑप्शन दिखाएं। नंबर 2। नंबर 2 के पीछे क्या है बताइए? फिक मौजू है। लोधरा वाले माशाल्लाह। नंबर 4। नंबर 4 के पीछे क्या है? मुसन्निफ अमजद अली आजमी। अल्लाह अकबर। Once again, लोधरा is on the बहार शरीयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, बेहतरीन 2 सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए कॉल्स पहले लेते हैं, कॉल्स दे दीजिए। माशाअल्लाह, सलमान भाई की आमद मरहबा, सोबान भाई की आमद मरहबा। आप दोनों ने मंच पर आकर इस सिलसिले की रौनक बढ़ा दी है। आपकी बारगाह में नाकिस मशवरा था कि अगर हमारे दावत इस्लामी के जितने भी शोबाजात है उनका कोई सेगमेंट इस सिलसिले में शामिल किया जाए। नोटेड, मरहबा, अच्छा सजेशन है आपका, अल्लाह बरकत दे आप जी। स्कोर बोर्ड अब देखेंगे आप। इल्म दी है ये मकसद मेरा। जी, इस वक्त हमारे स्कोर बोर्ड में तब्दीली हमें नजर आ रही है। लोधरा 32 नंबर के साथ और सक्खर 28 नंबर के साथ मौजूद है। 4 नंबर का फर्क है, लेकिन बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल आपने एनर्जेटिक रहना है, किसी वक्त भी पासा पलट सकता है। आइए अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट है जान है तो जहान है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। मदनी चैनल के नाजरीन, आपका मदनी चैनल हर तरह से आपको केटर करता है और बिलखुसूस ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से ये हमारा सेगमेंट मकबूल आम होता चला जा रहा है। बहुत सी आगही मिल रही है और हमें ऐसा फीडबैक भी मिल रहा है कि जो कुछ जान है तो जहान है सेगमेंट में सीखते हैं लोग। जो ड्राइविंग करते हैं, वो बाइक है या फिर वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट अपनी जिंदगी में करते हैं। सेगमेंट कुछ इस तरह से है कि हम आपको कुछ सिग्नल दिखाते हैं और उस सिग्नल की क्या वजह है, वो सड़क पर क्यों मौजूद है या वो सिग्नल किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, टीम के मेंबर्स वो बताते हैं और अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी देते हैं। जी दिखाइए पहला सिग्नल। सक्खर वालों की बारी है, सक्खर वाले बताएंगे ये किस चीज का सिग्नल। 3 बत्तियों वाला इशारा। 3 बत्तियों वाला इशारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन होगा जो कि इस सिग्नल को नहीं पहचानता होगा? 3 बत्तियों वाला इशारा, याद रखिए ये बहुत अहम है कि 3 बत्तियां, ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। मदनी चैनल के नाजरीन, जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन। पूरी दुनिया में कलर्स का ये कॉम्बिनेशन है, लाल है और ऑरेंज है और ग्रीन है। ये कलर ब्लाइंड जो लोग होते हैं, जो सारे रंग सही तरीके से नहीं देख सकते, उनको भी ये रंग नजर आ जाते हैं, रात को ज्यादा चमकते हैं। और इन कलर्स को इस तरीके से मैनेज किया होता है कि एक तरफ वालों के लिए अगर लाल है तो दूसरी तरफ वालों के लिए सब्ज है, यानी उनको जाने की इजाजत है, इनको जाने की इजाजत नहीं है। इस तरीके से एक्सीडेंट्स भी रुकते हैं और ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी सही तरीके से जारी रहता है। आइए इस हवाले से एक वीडियो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क है और रेड लाइट जो है हमें नजर आ रही है, यहां पे रुकना चाहिए। रेड लाइट नजर आ रही है और अब ऑरेंज हो गई है और ये गाड़ी हिट हो गई। आप देख सकते हैं ये गाड़ी हिट हो गई क्योंकि इसने रेड लाइट को वायलेट किया था और वो गाड़ी हिट होने के बाद वो उल्टे हाथ की तरफ झुकी हुई थी। नेक्स्ट जी चलते हैं हमारी लोधरा की टीम की तरफ। दिखाई दे इशारा इनको। जी इस इशारे का क्या मतलब है? ओवरटेकिंग ममनू है। ओवरटेकिंग ममनू है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। द मोस्ट प्रोबेबल इज कि ये ऐसी सड़क है जो 2 वे नहीं है, तो सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, आप भी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। आजकल पंजाब में धुंध, फॉग, स्मॉग बहुत ज्यादा है या वैसे भी गर्द है, और वैसे भी जब ओवरटेकिंग आप करेंगे तो ओवरटेकिंग करते हुए अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, बहुत बुरी तरीके से हेड ऑन कोलिजन हो सकता है, यानी दोनों सामने से टकराएंगे और इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। इस हवाले से भी हमारे पास वीडियो मौजूद है, देखते हैं जी वीडियो।
आप देख सकते हैं ओवरटेकिंग की गाड़ी ने, और ओवरटेकिंग करने के बाद कितना बुरा हादसा हुआ और एक बड़ी गाड़ी से वो टकराई और देखे परखच्चे उड़ गए उस गाड़ी के। याद रखिए, देर से पहुंच जाएं, देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। कभी कभार ओवर स्पीडिंग सिर्फ और सिर्फ शौक की वजह से की जाती है, और अगर इमरजेंसी भी है तो याद रखिए, अगर मेडिकल इमरजेंसी है, आप मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियों को बुलाएं ना, ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं। आप एक नंबर डायल करेंगे, गाड़ियां आ जाएंगी, उनको सड़क पे खुद ही रास्ता मिलता है, सब कुछ होता है। ओवरटेकिंग गलत अंदाज से ना कीजिए। जी अगला सिग्नल दिखाइए, हमारी सक्कर की टीम बताएगी। यू टर्न मना है। यू टर्न मना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यू टर्न मना है, यानी इस जगह पर आप गाड़ी को यू टर्न करके वापस नहीं ला सकते। कई वजूहात इसकी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ इमारतें ऐसी हों जिन इमारतों को उनके सामने से गुजरना मना है, या कोई और ऐसा सिस्टम हो सकता है जिस वजह से यू टर्न मना किया हुआ है। अथॉरिटीज ने, हमने ये साइन देख लिया, अब हमने यू टर्न यहां से नहीं लेना। आइए इसकी भी वीडियो देख लेते हैं। देखिए गाड़ी है सफेद रंग की, यू टर्न मना था, यहाँ पे सिग्नल नजर आ रहा था, गाड़ी ने फिर भी यू टर्न लिया और यू टर्न गाड़ी ले रही है, हिट हो, और गाड़ी हिट हो गई। ये जो कैमरे वाला है इसी से हिट हुई है, ये जो पीछे रेड रंग का आपको नजर आ रहा है इसी से, क्योंकि कैमरे वाले ने यही गुमान किया होगा कि यहाँ यू टर्न तो मना है, अगली गाड़ी वाला कम से कम सीधे हाथ नहीं मुड़ेगा। उसने ये गुमान किया और वो सीधा चलता रहा। अचानक ब्रेक लगी और पीछे से गाड़ी हिट हो गई। आगे चलते हैं जी, दिखाइए लोधरा वालों को सिग्नल। रेलवे गेट वाला फाटक, रेलवे गेट वाला फाटक, जवाब दुरुस्त दे दिया है। Several accidents are reported across the globe that people they don't care railway crossing is in front. रेलवे क्रॉसिंग के सामने वो ले आते हैं गाड़ी, और अक्सर औकात फाटक नहीं होता, और अगर फाटक है भी तो अब गाड़ी को आपने आहिस्ता करना है, इस चीज को मैनेज करना है कि पहले रेलगाड़ी गुजर जाए। याद रखिए आजकल के दौर में जब सेल्फी और अपनी वीडियोस बनाने का बहुत शौक चढ़ा होता है लोगों को, बहुत सी जानें इस वजह से जाया हुई कि रेलवे के सामने खड़े होकर उन्होंने इंजन के सामने सेल्फी बनाना चाहिए, या गाड़ी को इस अंदाज से रखा और फिर बहुत खतरनाक हादसा हुआ। आइए इसकी भी वीडियो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने दो कोन्स खड़ी हैं। ये कोन जो होती है ये बताया जाता है कि ये कोई सिग्नल है, कोई सामने रुकावट है, और ये फाटक बंद नजर आ रहा है आपको, बार है, और वो काली गाड़ी चली गई। और ये देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, और ट्रेन वो ऑब्वियसली अपनी स्पीड के साथ जा रही होती है। काली गाड़ी के साथ क्या वाकया हुआ, फाटक बंद था, लेकिन उस बात को वायलेट करने की क्या फिर नतीजा निकला। ले जी, हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल होता है। अब कुछ कॉल्स लेते हैं जी, कॉल्स दीजिएगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, सलमान भाई की आमद और सुबान भाई की आमद, मरहबा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह आज मेरी टीम का मुकाबला है, चूंकि मैंने भी लोधरा में ऑडिशन दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हो सका। सुबान भाई आप ही तशरीफ लाए थे ऑडिशन लेने के लिए, दुआ फरमाएं कि अगले साल मैं ऑडिशन दूं और सिलेक्ट हो जाऊं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। देखिए इसमें एक चीज मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। एक चीज हमने आपको ऑडिशंस के दौरान भी बताई, हर इंसान मुख्तलिफ तहाइफ, मुख्तलिफ ब्लेसिंग्स और मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा होता है। हम जब वहां पर जाते हैं पूरा क्राइटेरिया मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, और हर तरह से हम देखते हैं कि वो कौन इस्लामी भाई हैं जो मंच की जीनत बन सकते हैं। ये दुनिया भर में प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप तैयारी कीजिए भरपूर अंदाज से। सलमान भाई हम शौक में आ गए, हम हैरान रह गए। एक शहर के अंदर एक इस्लामी भाई ने हमें बताया कि पिछले साल में सेलेक्ट नहीं हो सका था और एक सवाल से रह गया था। मैंने उस वजह से जो फतावा रज़विया शरीफ है उसकी 10 जिल्दें पढ़ ली हैं पूरे साल। देखिए एक सवाल ना उसको आया उस बच्चे को और वो मंच पे ना आ सका, लेकिन उससे उसको कितनी तहरीक मिली। वो 10 जिल्दें, वो तो सारी जिंदगी उसके लिए सरमाया बन गई। तो आप दिल छोटा ना कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन ये ऑप्शन खुला रखिए कि हो सकता सेलेक्ट हो या ना हो। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है, मैं बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। हमें आपका प्रोग्राम ज़ेनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। सोबान भाई और सलमान भाई आप दोनों बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। क्या आज अब्दुल भाई भी अचानक से तशरीफ लाएंगे? अचानक से आएंगे तो ये तो जब आएंगे तो ही पता चलेगा। हम भी इंतजार में हैं, आप भी इंतजार में रहिए।
मरहबा। बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। 5 सेगमेंट्स हो चुके हैं। जान है तो जहान है लास्ट सेगमेंट था जिसमें दोनों टीमों का स्कोर 4-4 रहा और यूं लोधरा की टीम 36 पर स्टैंड है और हमारी सखर की टीम 32 पर है। फर्क तो 4 नंबर्स का है लेकिन इंशाल्लाह वो पासा पलट सकते हैं। दे कैन डू द कमबैक इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। नात खानी का ये एक वक्फा होगा, पहले मुहासबा होगा और फिर इंशाल्लाह फिक्र मदीना और नेका माल का जायजा और उसके बाद इंशाल्लाह नात खानी भी होगी इंशाल्लाह। जी आतिफ भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने और उसूल सवाब के लिए अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए और आइए मिलकर मुहासबा करते हैं। नंबर 1, अच्छी नीयतें की, 2 पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात, सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीचे रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना मुहासबा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर में पहुंच गए, 2 घंटे मदनी कामों में सर्फ किए, सदाए मदीना लगाई, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, घर दर्श हुआ, मस्जिद दर्श दिया, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, तहज्जुद सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन और इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 मदनी कामों में से एक मदनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, जाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तईद ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर मदनी हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्श दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, जबान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आजारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सबको इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। बिगड़ी बनाओ हमारी, बिगड़ी बनाओ हमारी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। मिटते हैं जहाँ भर के
ہیں سب کام مدینے میں بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ 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 مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی آخری وقت ہے ایک بیمار کا مرض پڑنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہم
निभाओ आका तेरे है निभाओ मक्की मदनी जैसे है निभाओ मक्की मदनी सदका अपने नवासों का सदका अपने नवासों का आका सदका अपने नवासों का आका सदका अपने नवासों का हमको बचाओ हमको बचाओ आका बिगड़े बनाओ हमारे बिगड़े बनाओ हमारे बिगड़े बनाओ मक्की मदनी बिगड़े बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी आका बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की कॉल शामिल करेंगे सुभान जी, कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह बहुत ही खूब सोबान भाई और सलमान भाई भी माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब की तरह ये प्रोग्राम चला रहे। अल्लाह पाक उन्हें और बरकत अता फरमाए। और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की जो गैर हाजिरी में रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता था अब वो लाइव हो रहा है माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हाजी अब्दुल हबीब और तमाम ज़ेनी आजमाइश की टीम को सलामत रखे। आमीन आमीन माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने की। अल्लाह ताला ज़ेनी आजमाइश की सारी टीम को सलामत रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिएगा बैक स्टेज के ऊपर हमारी पूरी टीम मौजूद होती है। सारा साल ज़हनी आजमाइश के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। ऐसे ऐसे सवालात जो कि आपके इल्म दीन में इजाफे का सबब बनते हैं और दिलचस्प भी होते हैं, इसमें पूरी एक टीम है। इस वक्त भी हमारे उलमा बैक स्टेज पर बैठकर हमारी भी रहनुमाई फरमा रहे हैं और यूं पूरी मदनी चैनल की टीम, कैमरामैन, सेटअप, पूरा सिस्टम है। आप दुआ करते रहें, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और ज़हनी आजमाइश का ये प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ता रहे। जी माशाअल्लाह मरहबा। ज़ेनी आजमाइश सीज़न 12 इसमें हाजी अब्दुल हबीब भाई की कमी तो बेशक महसूस हो रही है, लेकिन सोबान भाई और सुलेमान भाई माशाअल्लाह मदीना मदीना सिलसिले को लेकर जिस तरह चल रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी कोशिशें कबूल फरमाए। बड़ी बात है कि इतने बड़े सिलसिले को लेके चलना और सुलेमान भाई और सोबान भाई की कोशिशें मरहबा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जो दुआएं आपने की और जो हौसला अफजाई आपने फरमाई उसकी हमें लाज रखने की तौफीक दे। जी मैं मोहम्मद रमजान फेबो अतारी नगर पाकर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आपका ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सोबान भाई और सलमान भाई को खुशामदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आमीन। जी ज़हनी आजमाइश मुझे माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है और सोबान भाई और सलमान भाई खूब धूम मचा रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, अप्रिसिएशन के लिए। कॉल शामिल की हैं सुभान भाई। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जी अच्छा शहरी। अच्छा शहरी प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 12 और सेगमेंट है अच्छे शहरी। आप जहां कहीं भी जाएं, किसी के घर, मोहल्ले, शहर या दूसरे मुल्क में, सबसे पहले आप क्या बात नोट करते हैं? सफाई, कि वो जगह कितनी साफ है। याद रखिए पूरी दुनिया में जहां भी सिविक सेंस की बात की जाएगी, दो मौजुआत हॉट फेवरेट होंगे, एक है ट्रैफिक और एक है सफाई। सफाई सैनिटेशन इतनी अहम चीज है कि हमारी जिंदगी के हर शोबे में इसका असर पड़ता है, इनफरादी हो या इज्तिमाई।
तहकीक के मुताबिक सफाई में जो सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट की जाती है, मुल्क से गुर्बत और बीमारी दूर करने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है। अच्छी सेहत का ताल्लुक डायरेक्टली वो सफाई से है, क्लीनलीनेस से। गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत तवील है, टाइफॉइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ए, ई, डाइसेंट्री। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज नेसेसरी। गंद सही जगह पर, जो उसकी जगह है, वहां पर फेंकना बहुत जरूरी है। ये जो हम कहते हैं बेटा ये कूड़े का शॉपर ले जाओ और बाहर फेंक दो, ये बाहर क्या होता है? ये सब हमारा है। ये गली, ये मोहल्ला, ये शहर, ये मुल्क, ये हमारा है। क्योंकि अगर बाहर गंद फेंका जाएगा, उस पे जरासीम, मक्खी, मच्छर आएंगे। ये कैसे हो सकता है कि हम उसके असर से बच जाएं? नहीं बचा जा सकेगा। सफाई की जितनी तरगीब दीन इस्लाम में है, तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हदीस पाक में आया, फरमाया अल्लाह पाक साफ सुथरे लोगों को पसंद फरमाता है। सफाई को निस्फ ईमान कहा गया। और आम तौर पर जो सफाई पसंद हो जाता है, यानी उसकी तबीयत में सफाई की आदत आ जाती है, तो अब वो अपने गिरदो नवा को भी साफ ही रखता है। और इस आलमी वबा के दौरान वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर हाइजीन। अपने हाथों को साफ कीजिए। मास्क पहन रहे हैं तो मास्क भी साफ होना चाहिए। गंदे हाथ मुंह, आंखों और नाक को मत लगाइए। छींकते वक्त आप अपनी एल्बो वो नाक पर रखिए। टिश्यू इस्तेमाल करने के बाद फौरन फेंक दीजिए। घरों में दरवाजों के हैंडल, टेबल, कुर्सी, किचन, लाइट के स्विच, मोबाइल, खिलौने, कंप्यूटर कीबोर्ड को खास तौर पे साफ कीजिए। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन अगर हाथ वाज़े तौर पे गंदे हो तो उसको साबुन से 20 से 30 सेकंड तक धोया जाए। साफ रहें, सेहतमंद रहें। वाह, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा पैगाम है। और यहाँ एक बड़ी काबिल गौर बात है सुभान भाई, एक चीज मैंने देखी जो एक तकलीफ दे बात थी। ये हमें इस पर गौर करना होगा कि एक शख्स था, वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने वहां से जो है वो मूंगफली जो है वो खरीदी, और मूंगफली खरीदने के बाद उसको छील के, उसके छिलके यूं करके वो बाहर फेंके। और उस पर किसी ने कहा कि आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं फलां कंट्री से जो है वो आ रहा हूँ। उन्होंने कहा फलां कंट्री के अंदर आप यूं इसको करके फेंकते? उन्होंने कहा नहीं फेंकता। उन्होंने कहा कि ये अपने मुल्क में ये करने का मजा ही अलग है। तो ये नेगेटिव मेंटेलिटी है, ये मजे वाली बात नहीं है। जिस अब्दुल हबीब भाई ने मौके पर बड़ी प्यारी बात कही थी कि हम सारे लोग अपने अपने घर के सामने की जो जगह है ना, इसको साफ करने पर आ जाए सुभान भाई, एक बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क का, इलाके का, मोहल्ले का, शहर का साफ हो जाए। तो ये नेगेटिव मेंटेलिटी जो है इसको खात्मा इसका करें। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है तो उसका कैन जो है वो बाहर ना फेंकें, बोतल बाहर ना फेंकें। मेरे वालिद साहब ने एक दफा मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बाजार जा रहा था तो बस से सुभान भाई किसी ने बोतल पी के वो शीशे की बोतल फेंकी। वो कहते हैं मेरे सर पे लगी। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। मैंने बाइक खड़ी की और साइड पे थोड़ी देर रुका तो फिर मुझे थोड़ा वो आया। तो जिस तरह ये किसी के साथ, ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे भाई के साथ भी, मेरे वालिद साहब के साथ भी। तो ये एटीट्यूड और ये अंदाज अच्छा नहीं है, इससे हमने अपने आप को बचाना है। और अब सुभान भाई हम प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और बड़ा ही प्यारा सेगमेंट हमारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आइए देखते हैं आज रुकने शुरा हमें किस जबान में और क्या सिखा रहे हैं। माशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में हम गुजराती ज़बान, जी हाँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बोली जाती है और हिंद के भी बहुत सारे बड़े इलाके में गुजराती बोली जाती है। हमारे जो मेमन होते हैं वो भी चूंकि गुजरात से आए हैं तो गुजराती ज़बान वो बड़ी प्यारी तरीके से हमारे बुजुर्ग समझते हैं। तो उन सब की दिलजोई की नीयत से इंशाअल्लाह आज गुजराती ज़बान में मदनी फूल पेश किए जाएंगे। एक बार फिर माजरत खा हूँ, जिस वक्त आप ये सिलसिला, ये सेगमेंट देख रहे होंगे, मैं बराह रास्त सिलसिले में हाजिर ना हो सका। मरकजी मजलिस शूरा का मदनी मशवरा जारी है, इसलिए आज का सिलसिला भी मैं बराह रास्त नहीं कर सका, मगर इस सेगमेंट में हाजिरी के लिए मैंने ये सेगमेंट पहले रिकॉर्ड करवा लिया। तो आइए अब गुजराती ज़बान में इंशाअल्लाह मदनी फूल सुनते हैं। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइयों अने मदनी चैनल ना जुआवा वारा, आज हूँ सेगमेंट उम्मत ना रंग ज़हनी आजमाइश ना साथे हमारा प्यारा छेला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाते उम्मती जे दुनिया ना कोई भी खित्ता अने कोई भी मुल्क मां राता हुए गुजराती भाषा बोलवा वाड़ा
અને સમજે તેમની દિલજોઈની નિયતની ગુજરાતી ભાષામાં હુસ્ને માશરતના બારામાં બયાન કરવાની કોશિશ કરશું. આ બારામાં કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો માફી આપશો. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાની ઘરવાળી રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુન, પોતાના હગા અને પોતાના અસહાબ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુમ, પોતાના હગાઓ અને પોતાના પાડોશીઓ દરેકના સાથે એટલી ખુશ અખલાકી અને મીઠાસના સાથે પેશ આવતા કે એમાંથી દરેક આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સારા વર્તાવના ચાવાવારા અને હર એક પર જાન નિછાવર કરતા હતા. ખાદિમે ખાસ હઝરત અનસ રદિયલ્લાહુ તાલાનું બયાન છે કે મેં 10 વર્ષ સોધી સફરે દેશમાં હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની સેવાનું શરફ હાસિલ કર્યો, મગર કઈએ ભી નબી પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના મનને ડાયટા ના ગુસ્સા થયા અને કઈએ ભી આના ચીદો કે આ કામ કેમ કર્યો અને કામ કેમ ના કર્યો. હઝરત આયશા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા ફરમાવે છે કે નબી પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ થી જાજો કોઈ પર ખુશ અખલાક હતા નહીં. આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના અસહાબ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુમ યા આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના ઘરવાળા ઓમાંથી કોઈ પર આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને બોલાવતા તો આપ લબ્બેક કહીને જવાબ આપતા. હઝરત જુરૈર રદિયલ્લાહુ તાલાનો ફરમાવે છે કે મેં જ્યારથી મુસલમાન થયો કઈએ બી હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મને પાસ આવવાથી નથી રોક્યા અને જે બી મને જોયા તો આપ મુસ્કરાવી દીતા. સુભાન અલ્લાહ, મુસ્કરાવી દીતા. આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ અપના અસહાબ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુમ સે ખુશ તબઈ ફરમાવતા અને બધાઈના સાથે મેલ મિલાપથી રહેતા અને દરેકના સાથે વાતો ફરમાવતા અને સહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુમના બચ્ચાઓથી બી ખુશ તબઈ ફરમાવતા અને આ બચ્ચાઓને પોતાના મુકદ્દસ ખોડામાં બેસાડતા અને આઝાદ, નીઝ, લોંડી, ગુલામ અને મિસ્કીન બધાઈની દાવતો કબૂલ ફરમાવતા અને મદીનાના છેલ્લા હિસ્સામાં રહેવાવાળા મરીઝોની તીમારદારી માટે તશરીફ લઈ જતા અને ઉઝર પેશ કરવા વાળાઓની ઉઝર કબૂલ ફરમાવતા. સુભાનઅલ્લાહ. હઝરત અનસ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ ફરમાવી છે કે કોઈ પણ શખ્સ નબી પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના કાનમાં કોઈ પડવાતું કરતા તો આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ત્યાર તક પોતાના માથું તેમના મોઢાથી અલગ નહીં ફરમાવતા જ્યાર સુધી કાન में કહેતા રહેતા. और आप અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાના અસહાબની મજલિસમાં કઈ ભી પગ ફેલાવીને ના બેઠતા હતા અને આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના સામને આવતા આપ સલામ કરવામાં પહેલ કરતા અને મળવા વાળાઓથી મુસાફહા કરતા. આપ ઘણી વખત પોતાના પાસે આવરા વાળાઓને આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાની ચાદર મુબારક બિછાવતા અને પોતાની મસનદ બી પેશ કરી દીતા અને પોતાના અસહાબ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુમ તેમની કુનિયતો અને સારા નામથી બોલાવતા. સુભાનઅલ્લાહ. ક્યારે પણ કોઈ વાત કરવા વાળી વાતોને કાપતા નહીં. દરેક માણસો સાથે ખુશ રવીના સાથે મુસ્કરાવીને મુલાકાત કરતા. મદીનાના ખુદ્દામ એ નોકર ચાકર બર્તનોમાં સવારે પાણી લઈને આવતા કેમ કે હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ તેમના ઠામડામાં પોતાના દસ્ત મુબારક ડુબોતા અને પાણી મુતબરિક થઈ જાય તો સખ્ત જાડાના મોસમમાં બી સવારમાં હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ દરેકના બર્તન પોતાનું મુકદ્દસ હાથ નાખી દીતા હતા અને જાડાની सर्दीના બાવજૂદ કોઈને ભી મહરૂમ નહીં ફરમાવતા. અલ્લાહ પાક हमने બધાઈને આના પર અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવી. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. મને પોતાની અને તમામ દુનિયાના માણસોની સમજાવવાની કોશિશ કરવી છે इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल. मदनी चैनल के नाज़रीन, अब गुजराती जबान में नात पढ़ेंगे. बड़ी प्यारी नात है, मैं बचपन से ये नात सुनता चला आ रहा हूँ, आज पढ़ने का मौका फिर मिलेगा. आइए मिलकर पढ़ते हैं. नबी पाक से अर्ज है कि हुजूर कभी हमारे घर भी करम फरमाइए, हमारे आंगन को भी चमकाइए. माणे आंगणिए माणे आंगणिए आवो सरकार, मदीना वाड़ा प्यारा नबी. माणे आंगणिए माणे आंगणिए आवो सरकार, मदीना वाड़ा प्यारा नबी. आपो
दर्शन आपो दर्शन आवे एक बार मदीना वाला प्यारा नबी आपो दर्शन आवे एक बार मदीना वाला प्यारा नबी आका के मैं बिताऊं माझा कौन सुनाऊं दुखनी बातों कौन सुनाऊं दुखनी बातों कौन बीजो छे मारो गम मदीना वाला प्यारा नबी कोणे बीजो छे मारो गम खार मदीना वाला प्यारा नबी माणे आंगणिए आओ सरकार मदीना वाला प्यारा नबी आका नूरे मुजस्सम जात तमारी करी दियो रोशन कोई रात मारी करी दियो रोशन कोई रात मारी कदी सपना मां आपने दीदार मदीना वाला प्यारा नबी कदी सपना मां आपने दीदार मदीना वाला प्यारा नबी माणे आंगणिए आवो सरकार मदीना वाला प्यारा नबी आका दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही न जाए मन मां आका दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही न जाए मन मां रही न जाए मन मां मारा दिलबर मारा दिलदार मदीना वाला प्यारा नबी मारा दिलबर मारा दिलदार मदीना वाला प्यारा नबी मारे आंगणिए आवो सरकार मदीना वाला प्यारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद से आ क्लिप तमने सरस लायगो होवे। उम्मीद है आपको ये क्लिप जो है वो अच्छा लगा होगा। हमारे बड़े ज़बरदस्त गुजराती बोलने वाले हैं, हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं शहजाद घांची भाई, उनकी और गुजराती नाज़रीन की दिलजोई के लिए मैंने भी एक जुमला बोला है, अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बतें बांटने वाला, आपस में एक दूसरे को इज्जत देने वाला बनाए, आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की जानिब, फर्क तलाश करें। इससे पहले आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 12 मुकाबला है लोधरा और सक्खर के दरमियान और आखिरी 2 सेगमेंट्स बाकी हैं। अगर हम स्कोर बोर्ड को देखें तो टोटल 36 एंड 32, 4 नंबरों का फर्क है। किसी वक्त भी इसको पैचअप किया जा सकता है, डिमोटिवेट नहीं होना। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सेगमेंट है फर्क तलाश कीजिए। दोनों टीम्स फर्क तलाश करें, फर्क तलाश कीजिए। इनका आपके पास 90 सेकंड्स। जी स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दी नाजरीन को, ये किस चीज की पिक्चर है नाजरीन देख सकते हैं। ये पिक्चर हमारे सामने है और इसमें जो फर्क है वो आप तलाश करेंगे। आपको टाइम अलॉट किया जाएगा और उस टाइम पीरियड के अंदर आपने जो फर्क तलाश कर लिया इंशाल्लाह उसके नंबर आपको अवार्ड किए जाएंगे। जी 90 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं।
90 सेकंड में आप फर्क तलाश करेंगे। गौर से देखिए, दोनों पिक्चर्स को बार बार गो थ्रू कीजिए, गौर से देखते हुए दोनों को कंपेयर कीजिए। गालिबन सलमान भाई, कोई इमारत लग रही है ये? जी जी, ये मस्जिद शरीफ मालूम हो रही है, मजार शरीफ। मजार शरीफ। सैयद साहब ने रहनुमाई फरमाई कि ये मजार है किसी उकबा बिन आमिर सहाबी रसूल उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार शरीफ है, और बहुत ही प्यारे एंगल से इसकी ये पिक्चर ली गई है। आप इसमें गुंबद शरीफ भी देख सकते हैं और मीनार शरीफ भी नजर आ रहा है, और साथ जर्द रंग की ये इमारत है, और कुछ डे लाइट में है, कुछ ये नाइट में है। 31 सेकंड, 30 सेकंड, 29 सेकंड्स रह गए जी। मुझे लगता है लोधरा वाले वो अपनी तरफ से फर्क तलाश कर चुके हैं, और अब जो है वो हमारे सखर वाले वो अभी तक कर रहे हैं, और टाइम है इनके पास। 18 सेकंड हो गए और 16 सेकंड हो गए, इसमें फर्क आप तलाश कर चुके हैं। लोधरा वाले और सखर वाले अभी तक कोशिश में मसरूफ हैं। हम फर्क जो है वो स्क्रीन पर देखेंगे, और देखने के बाद फिर इंशाल्लाह ये डिसीजन लेंगे। जी, टाइम आपका खत्म हो चुका है। मैं दोनों टाइम से गुजारिश करूंगा कि बोर्ड से पीछे हट जाइए, दोनों टाइम भी बोर्ड से पीछे हट जाएं, और अब हम देखेंगे कि ये फर्क क्या इन्होंने सही तलाश किया या नहीं। जी, ये एक फर्क ठीक है, इधर दरवाजा है, इधर दरवाजा नहीं बना हुआ, यहाँ पर एक गुंबद है, यहाँ पर गुंबद नहीं है। और तीसरा फर्क जो है वो यहाँ पर खिड़की का है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर भी निशान का फर्क है। इस जगह पर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो है दूसरा, ये वाला जो फर्क है, इसके ऊपर सलमान भाई रहनुमाई फरमाए। जी जी, सलमान भाई देख लें और मजलिस भी देख ले कि इन्होंने इस जगह पर इसको हिट किया है, जबकि मेरा ख्याल है वो इन्होंने इसको रखा हुआ है ना। जी जी, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अभी देख लें। नहीं, जो मतलूबा निशान था वो आपने नहीं बताया। स्क्रीन पे देखें, अजय सलमान भाई स्क्रीन पे एक दफा देख लें, गो थ्रू कर लें स्क्रीन पे, मैं इनका देखता हूँ। जी, ये हमारी सखर की टीम है। सखर की टीम में आपने एक ये निशान बनाया, एक ये ठीक है, और एक ये निशान बनाया, एक ये ठीक है, तीसरा ये ठीक है। आपने 3 फर्क तलाश किए जी, और तीनों फर्क आपके ठीक है, तो हमारी सखर की टीम को 3 नंबर दिए जाएंगे। जी, ये ओके सुभान भाई, ओके है। हाँ जी, मजलिस की तरफ से भी ये फैसला आया कि इनका ये ओके है, तो यूं लोधरा की टीम 5 नंबर हासिल करने में कामयाब हुई, और सखर की टीम को 3 नंबर अवार्ड किए गए। दोनों को अब दोबारा जो डिस्पैरिटी थी नंबर की थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोधरा की टीम पहले आगे थी, अब मजीद आगे हो जाएगी, और हमारी सखर की टीम उन्होंने 3 फर्क इसमें तलाश किए। जी, कॉल दीजिए। मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश सीजन 12 एपिसोड नंबर 11 है आज। हम सब घर में बहुत शौक से देखते हैं। मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी, आपके घर वालों की, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जी, दिखाइए स्कोर बोर्ड। 6 segments have been completed in the 11th episode of Zehni Azmaish season 12 and scores are in front of you। आप देख सकते हैं कि हमारे 6 सेगमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, 41 और 35, 6 नंबरों का फर्क है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प आखिरी सेगमेंट अब इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे, और इस सेगमेंट में फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ जाएगी और कौन सी टीम दोबारा से एक दफा कंपटीशन के लिए एलिजिबल होगी। जी सलमान भाई। जी, बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब। नसीब अपना। बारी है सबसे पहले सखर वालों की। जी आइए, कैमरे की तरफ करके आप पर्ची को खोलेंगे। कलाम वापस आ जाए। जी, इस शेर का दूसरा मिसरा आपको सुनाना होगा। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर।
दूसरा मिसरा आपको सुनाना होगा। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। बारी है लोधरा वालों की, आइएगा आगे। जी, हर सहाबी नबी सुभान अल्लाह। लोधरा वालों को जवाब देना है। बताइए हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम उमूमन किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में आया करते थे? सिद्दीक़ अकबर। जी, जवाब आपको दुरुस्त देना होगा। वक्त आपके पास मौजूद है, गौर कर लीजिए जवाब पर। गलती हो गई आपसे, दुरुस्त जवाब नहीं दिया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक शक्ल में आया करते थे। जी, बारी है अब सखर वालों की। नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो। जी, समझाइए मगर इशारों से। सैयद साहब की एंट्री होगी अब मंच पे। माशाअल्लाह। जी, नसीब अपना अपना। पर्चियां दो दी गई हैं, उनमें से एक का इंतखाब किया है। आप मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हाथों से समझाने की कोशिश करेंगे। एक चुप चुप चुप। एक गूंगा। खामोश शहजादा। खामोश शहजादा। खामोश शहजादा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सखर वाले आगे बढ़ते हुए। बारी है लोधरा वालों की। सलमान भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे कुछ ताजरान इस्लामी तशरीफ लाए हुए, अगर एक सवाल इनसे भी हो जाए, दिलजोई की नीयत से हमारी मजलिस के इस्लामी भी आए। माशाअल्लाह। जी, करें सवाल सुभान भाई। मैं करूं सवाल? जी बिल्कुल करें। माशाअल्लाह। चले, आपसे सवाल हम करते हैं और उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से कोई यादगार तोहफा भी आप लेकर जाएंगे। ये बताइए कि हमारे आका अल्लाह के प्यारे और आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस शहर में और किस तारीख को हुई? मोहम्मद हनीफ। क्या करते हैं हनीफ भाई आप? मैं बिजनेस करता हूं ताजिरान के काफिले में। माशाल्लाह। मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल। मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल। हनीफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। चलिए जी। सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों पर मुश्तमिल बहुत प्यारी किताब 576 सफ़हात पर है और 25 मदनी मुज़ाकरों का ये गुलदस्ता है। ये इन्हें पेश की जाएगी और ये मकतबतुल मदीना से 430 रुपए में तलब की जा सकती है। माशाल्लाह। साथ ही साथ गिराफ काबा शरीफ के मुबारक धागे और 14 मुबारक पानियों का मजमुआ भी पेश किया जाएगा। मरहबा माशाल्लाह। आते हैं जी मुकाबले की जानिब। बारी है लोधरा वालों की। सीरतुन नबी बताना है आपको। लोधरा वाले जवाब देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन रोजा रखकर अपना यौम विलादत मनाते थे? पीर शरीफ के दिन। पीर शरीफ के दिन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। बारी है सखर वालों की, आइए। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला जी, समझाइए मगर इशारों में। सखर वालों की बारी अभी आ गई। साहब आएंगे अब। अल्लाहु अकबर। जी, चेहरा, आंखें, आंखों की बरसात। जी, आंखों की बरसात। आंखों की बरसात। अश्कों की बरसात। अश्कों की बरसात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बारी है जनाब अब लोधरा वालों की, आइए जी। शुक्रिया शुक्रिया हार कहती है के खुद को पूछा। कलाम जी, इस कलाम का मक्ता सुनाना होगा आपको। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा।
मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। यूं सवालात मुकम्मल हुए दोनों टीमों से और आज का मुकाबला लोधरा वाले जीत चुके हैं। शुक्रिया रब तेरा, हार कहती है कि खुद को ऊंचा उड़ा, जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा। मदरी चैनल के नाजरीन, जैसे हम अभी कलाम सुन रहे हैं, हार कहती है तुझको कि खुद को ऊंचा उड़ा। यकीनन ये एक मौका और आएगा सक्खर वालों के पास जिसमें 3 टीमें होंगी और वाकई उसमें कंपटीशन तो टफ होगा, लेकिन बहरहाल उसमें भी किसी ने किसी तो जीतना ही है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये मजीद अच्छी तैयारी के साथ उसमें अपीयर होंगे। बहरहाल लोधरा हैज परफॉर्म वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया लोधरा वालों ने। सक्खर वालों का भी बहुत अच्छा स्टेमिना था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फाइट की। फैजान अबू हुरैरा सुभान भाई इसको दिया जाएगा जो सलमान भाई फरमाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जवाब दिए हैं, अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और भाईजान ने माशाल्लाह काफी जो है वो अच्छे जवाब दिए हैं। तो मजलिस की मुशावरत के साथ जी फैजान अबू हुरैरा इनको पेश किया जाता है। कबूल फरमा। मदनी चैनल के नाजरीन, ये मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, जब ये लोधरा की टीम का ऑडिशन हो रहा था तो ऑडिशन लेने की सादत मुझे हासिल हुई। ये वाकई दावत इस्लामी पर करम है। आमतौर पे देखते हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टटरिंग का। स्टटरिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा बोलने में मसला होता है। इस्लामी भाई को ऐसा है, बचपन से स्टटरिंग का मसला था, लेकिन इनको चुनते हुए मैंने इस चीज को बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि इनका हाफजा भी बहुत अच्छा है, कोशिश भी बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं बज़ाहिर इस कमजोरी के साथ आज फैजान अबू हुरैरा भी ये लेकर जा रहे हैं और आपको शायद पता भी ना चला हो आज के सिस्टम में इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह जी। शाह जी, क्विज एप्लीकेशन के जरिए हमने जो सवाल किया था उसकी कुरानदाजी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सवाल था हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम बताएं। जवाब में 4 ऑप्शन थे और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मारिया रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह तआला अन्हा। सही ऑप्शन था हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए एप्लीकेशन के जरिए। उनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी। हार कहती है के खुद को ऊंचा उड़ा, जीत या जी 5 आप देख सकते हैं नंबर जिस वक्त डिस्प्ले हुआ है हमारी मदरी चैनल की स्क्रीन पर। फर्स्ट पोजीशन और इन 5 के लिए तहाइफ हैं जी। ये 5 के 5 अपना नंबर टैली करें, जो नंबर आपको आया था क्विज एप्लीकेशन के ऊपर, हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तक ये तोहफा पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह हर सिलसिले की इब्तिदा में हम सवाल करते हैं जिसका SMS के जरिए जवाब देना होता है। तो आज जो सवाल किया गया था वो ये था, या जलीलू 10 बार पढ़कर अपने माल व असबाब पर दम करने के क्या फजाइल हैं। तो दुरुस्त जवाब था माल चोरी से महफूज रहेगा। मलफूजात अमीर अहले सुन्नत में ये जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम ये है: बिनते नूर मोहम्मद जिलानी वाकेंट, उम्मे बाबत गुजर खान, उम्मे फिजा पिंडी, बिनते रमजान अत्तारिया बूढ़ेवाला, बिनते मोहम्मद अकरम तबस्सुम कादरी गुड्डो बेराज, हामिद रजा अत्तारी, लाला मूसा, अब्दुल खालिक अत्तारी सोबतपुर बलोचिस्तान, उस्मान अत्तारी डस्का, मोहम्मद एहसान हुसैन अत्तारी कराची, बिनते याद अत्तारिया समड़ियाल, बिनते गुलाम हुसैन अत्तारिया अकरो शरीफ, मोहम्मद तुफैल खैबर पख्तूनख्वा, हमजा अत्तारी सांगला हिल, बिनते मोहम्मद फाजिल डेरा गाजी खान, सईद खान इस्लामाबाद, उम्मे कितमीर कराची, मोहम्मद अमीर हमजा अत्तारी खारिया, बिनते असगर कश्मीर। अब इनके दरमियान कुरानदाजी का सिलसिला करते हैं। आज जिनका नाम निकला है बिनते नूर मोहम्मद, ये अपने महरम के जरिए राब्ता करें, इंशाल्लाह इन तक इनका तोहफा पहुंचाया जाएगा। जी, अगले सिलसिले के हम एक सवाल छोड़े जाते हैं और उसका जवाब भी SMS के जरिए देना होता है। सवाल ये है मदनी चैनल के नाजरीन से, ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है? ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है? इसका जवाब मिल जाएगा आपको मलफूजात अमीर अहले सुन्नत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। SMS के जरिए इसके जवाब देना है।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مجھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا